way of the sacred soul. खालिक मालिक खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ तमजीद ताज़ीम बड़ाई हम्द और सना सताइश करते हैं। जलाल के बादशाह इस पानी को तेरे नाम से मसार मखसूस करते हैं। इसमें तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू की बूंदें मिला देते हैं। अपने बेबंदा जॉर्ज गुलशन खोकर साहब को खुदावंद और जोर ताकत कुदरत अता कर, उम्र की दराजी, सेहत सलामती तंदुरुस्ती के साथ अता कर, हर किस्म की दुश्मन की चालों से बचा के तू महफूज रखता आया है। आइंदा बाकी अयाम में भी तो अपने बंदे की रहबरी, रहनुमाई, मदद और हिफाजत करना। हर किस्म के गंदे वायरस, वबा, परेशानी से बचा के महफूज रखना। जितनी देर तेरा बेटा इस जमीन पर जिंदा रहे, आए खुदावंद तेरा होकर जिए और तेरा होकर ही तेरे पास वापस लौटे। तमाम तेरे खुदाम की यहाँ मौजूदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने बंदे को बड़ी बरकत दे, उसके फाके रोजे को कबूल कर, दिली आसमुराद को पूरा कर। ये दुआ तेरे कद्दूस नाम से मांगते हैं, आमीन। बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से, आमीन। Happy birthday, Jesus. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus.
کے کلام کے لیے دعا کریں گے کہ خدا اپنے خادموں کو بھرے بادل کی طرح استعمال کرے، تاکہ جو خدا کے بندہ نے 40 سالوں کے درمیان جو ہے وہ اپنی منت کو، وعدے کو خدا کی حضوری میں پورا کیا اور خدا نے اس کی مدد کی، اس کے متعلق ہم اور زیادہ سیکھ سکیں اور خدا کی شکر گزاری اور بڑیائی ہو۔ دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں گے۔ ہمارے درمیان پاسٹر نصیر صاحب ہیں، وہ دعا میں رہنمائی کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹی، خدا روح القدس کے نام سے خدا پاک خدا لشکروں کے رب عہد کے صندوق تو ہزاروں ہزار میں لوٹ دیا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خدا تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں خدا پاک خدا۔ تو سے بڑے خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے خدا پاک خدا تو سب کو برکت دینا۔ آج جو بھی تیرا خدا پاک کا بندہ تیرے کلام کو بیان کرے خدا پاک خدا، اس کی رہنمائی کرنا خدا، اپنے خادموں کو برکت دینا خدا پاک خدا، جب یہ کلام کی خدمت کرے تو تیرا پاک ان کو فصل سے استعمال کرے اور خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے یہ سبھی نتیجہ ہوتا ہوگا ہم کو برکت دینا مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ آپ نے اپنے میسج کو جو ہے وہ ڈلیور کرنا ہے۔ سب بولے ہاللویا، زور سے کہ ہاللویا، کر کے کہ ہاللویا۔ اس کا نام باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے۔ اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اور ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر دیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکایک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا۔ اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ یہاں تک آج کے جلسے کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ ہم اسی تیری ستائش۔ سمسی خداوند میں عزیز مومنین، سب سے پہلے ہم خدا باپ کے نہایت شکر گزار ہیں خدا کی تمام برکات کے لیے، فضائل نعمتوں کے لیے، زندگی، تندرستی، صحت یابی کے لیے، اس مقدس محفل کے لیے جو خدا نے اپنے بندہ ہمارے بھائی جارج کے ذریعے آج یہ ممکن کیا، تاکہ اس مقدس محفل کے ذریعے ہم خدا کے قدم میں مل کر خدا کی شکر گزاری، اس کی تعریف اور تمجید کر سکیں۔ آج کا جو خاص موضوع ہے، جو خاص مقصد ہے، وہ روزے کے متعلق ہے۔ روزے کا مطلب ہے نفس کشی کرنا، رک جانا، ٹھہرنا، باز آنا۔ اور سب سے بڑھ کر جو سب سے پہلا روزہ ہے وہ ہمیں تقریر سے ہی ملتا ہے۔ روزے کے متعلق بہت کچھ ہم نے سنا ہے، جانتے بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ کہ روزہ بے شک کئی طرح کا ہے،
कलम मुकद्दस में भी कई रोजों का जिक्र हम सुनते हैं। 3 दिन का रोजा है, 7 दिन का रोजा है, 21 दिन का रोजा है, 40 दिन रात का रोजा है, जो 3 शख्सियात हमने सुना और हम जानते हैं 3 शख्सियात 40 दिन रात की रियाजत करते हैं। लेकिन सबसे पहला जो रोजा है नफ्स कशी, यानी बाज आना, रुक जाना, ठहरना, खुदा के अहकामात, उसके कवानीन और उसकी क़ज़ाओं के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना, ये एक तरह की नफ्स कशी है। अपने आप को बाज रखना, अपने आप को बांधे रखना, अपने आप को महफूज रखना है। जिस तरह आदम और हवा को एक तरह का रोजा दिया गया, यानी मना किया गया कि बाग के हर दरख्त का फल तुम खा सकते हो, लेकिन वो जो बाग के दरमियान है जिस दिन खाओगे मर जाओगे। रोजा हम क्यों रखते हैं? रोजा, रियाजत, दुआ, इबादत, ये तमाम तर बातें जो हैं, ये तमाम तर एक्ट जो हैं, ये तमाम तर अमल जो हैं, हमें खुदा की कुर्बत, उसकी मोहब्बत का तजुर्बा देते हैं कि हम खुदा के नजदीक आए, खुदा की कुर्बत को हासिल कर सके, खुदा से देरो बरकत और फजाइल को रिसीव कर सके। इसीलिए हम रियाजत में होते हैं, हम फाका करते हैं, अपने आप को दुख देते हैं, जिस्मानी दुख देते हैं, रूहानी दुख देते हैं, कि उस दुख के जरिए, उस तकलीफ के जरिए, उस रियाजत के जरिए, उस रोजे के जरिए हम अपने आप की जो आजिज़ी है, अपने दिल की आजिज़ी को, इनकसारी हलीमी को, छोटेपन को खुदा के आगे रखें और खुदा से ढेरों बरकत और फजाइल हासिल कर सके। जिस तरह हम कलाम मुकद्दस में, मुकद्दस लूका के इंजील में देखें तो उसमें 18वें बाब में कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए, दोनों का किरदार जो है वो बयां किया गया है। और रोजे रियाजत में भी हम अपने किरदार के जरिए खुदा के नजदीक आने की कोशिश करते हैं, खुदा की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं, फाका के जरिए, तकलीफ के जरिए, जिस्मानी दुख के जरिए। तो यहाँ पर 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा महस्सब। फरीसी जो है वो जब खुदा के घर में जाता है तो बुलंद आवाज से दुआ करता है, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं जालिम नहीं, लुटेरा नहीं, जनाकार नहीं, हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी आमदनी में से दया की देता हूँ। ये तमाम तर जो काम हैं इनमें से एक भी काम गलत नहीं है, बड़े अच्छे ये काम हैं खुदा की मोहब्बत हासिल करने के लिए, खुदा के नजदीक आने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि मैं जालिम नहीं, लुटेरा नहीं, जनाकार नहीं। ये वो तमाम तर अखलाकी बुराइयां हैं जिनसे वो दूर है, वो नहीं करता, इनसे दूर है। और साथ ही साथ कुछ अच्छाइयां भी हैं कि मैं तो रोजा भी रखता हूं, लेकिन ये रोजा वो जो रखता है वो बयान किया गया है कि हफ्ता में 2 बार, और हफ्ता में 2 बार जो रोजा है ये सोमवार और जुमेरात का, जो वो आमतौर पर फकीर फरीसी रखते थे। और ये वो दिखावे के लिए रखते थे, क्योंकि उनके बाजारों में बड़ा रश होता, मंडियों में, तो दिखावे के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को रास्तबाज ठहराने के लिए वो रोजा रखते, रियाजत करते, दिखावा करते, और मोड़ों पर बैठकर अपने सरों में राख डालते कि हम रास्तबाज हैं, हम नेक हैं, हम दुआगो हैं, हम खुदा तरस हैं, हम खुदा परस्त हैं, दिखावे के लिए। तो जो वो दुआ करता है वो भी अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि मैं इस महसल की मानी नहीं हूं। तो खुदा उसकी दुआ, उसकी इस रियाजत रोजे को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए रोजा रखता है। उसके बरक्स जो दूसरा है, वो जब दुआ करता है आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, हलीमी के साथ, ये दुआ करता है कि ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर, तो खुदा उसकी दुआ
को सुनता और कबूल करता है। ये वो दुआ है, ये वो रोजे और रियाजत की हालत है जो खुदा पसंद करता है। आज की अंजिल मुकद्दस पर थोड़ा सा गौर करें तो आज की अंजिल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं कि खुदा यीशु मसीह दुआ करने के लिए जाते थे। खुदा यीशु मसीह हमेशा ही अपनी जिंदगी दुआ या जिंदगी में रहते हैं। हालांकि खुदा यीशु मसीह खुद खुदा है, अपनी अलूहियत में, अपनी इलाही जात और कुदरत में वो खुद खुदा है, लेकिन इसके बावजूद वो इंसानी सूरत इंसान होते हुए वो दुआ भी करते हैं, बाप से कुव्वत भी मांगते हैं, तकवीयत भी मांगते हैं, यहाँ तक कि 40 दिन रात की रियाजत करते हैं उस बड़े काम के लिए, उस बड़े मकसद के लिए, उस बड़े मंशूर के लिए जो मसीह खुदावंद को कलवरी पर पूरा करते हैं। हालांकि उसके रास्ते में रुकावटें बहुत हैं, शैतान उसे वर्गलाता है, आजमाता है ताकि उस नजात के भेद को मुकम्मल ना किया जाए, लेकिन मसीह खुदावंद मुकम्मल तौर पर उस पर फातेह हासिल करते हैं। सबसे पहली जो आजमाइश की रोटी के मुतालिक मसीह खुदावंद जवाब देते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर कलमा से जो खुदा के मुंह से निकलता है। अपने इख्तियार को खुदा मसीह अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि उसके पास इख्तियार है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, तुझे कुछ जरूरत ना पहुंचेगा। उसके पास इख्तियार है, कुव्वत है, कुदरत है, इसके बावजूद मसीह खुदा अपनी कुव्वत, अपनी जो अपना इख्तियार अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसका मकसद रोजे रियाजत के जरिए, दुआ इबादत के जरिए उस मकसद को मुकम्मल करना है। जिस तरह यकीनन हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई का भी एक खास मकसद है, और वो मकसद अपने आप को बड़ा बनाना नहीं, अपने मुआशरे या गली मोहल्ले में अपना इश्तिहार देना नहीं, बल्कि खुदा की कुर्बत हासिल करना है, खुदा के साथ बेवक्त होना है, खुदा में होना है। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह भी ऐसी पुरजोर दुआ करते हैं अपने शागिर्दों के साथ। 3 शागिर्द हैं, याकूब, यूहन्ना और पतरस। 3 शागिर्दों को साथ लेकर क्यों गए? ये 3 खास अहमियत के हामिल हैं। पतरस को इसलिए साथ लेकर के क्योंकि पतरस जो है उसे मसीह खुदा कैफा कहते हैं, सरदार कहते हैं, अपना जानशी बनाते हैं, क्योंकि कैफा है और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अस्फल के दरवाजे तुझ पर गालिब ना आएंगे। याकूब को इसलिए साथ लेकर के क्योंकि याकूब जो है वो तमाम रसूलों में पहला शहीद रसूल है, इसलिए उसे प्रायोरिटी दी गई, उसे मसीह खुदावंद अपने साथ लेकर जाते हैं। यूहन्ना को इसलिए क्योंकि वो प्यारा शागिर्द भी है और मसीह खुदावंद उसे अपनी मां मुकद्दसा मरियम उसके सुपुर्द करते हैं, वो कलीसिया की नुमाइंदगी करने वाला है, इसलिए यूहन्ना को मसीह खुदावंद साथ लेकर गए। और ऊंचे पहाड़ पर ही क्यों गए? हालांकि मैदानी वाद है, मैदान पर मसीह खुदावंद जब मुबारकबादियां पेश करते हैं, उसके बाद कई बार खुदा मसीह हजूम को खाना खिलाते हैं, हरी घास पर बैठकर कलाम सुनाते हैं। अब यहाँ पर दुआ करने के लिए पहाड़ पर गए। हम ज़बूर 121 में गाते हैं या बोलते हैं, अखिया चुकना हम ऐवल पहाड़ा, मदद लई मैं किसने पुकारा, मेरी मदद लिए रब आप भी आया जिन्हें धरती आकाश बनाया। ये एक ख्याल था यहूदियों का कि खुदा जो बुलंद वाला है, जो आसमानों पर रहता है, आसमानों पर उसका बसेरा, उसका घर है, तो पहाड़ चूंकि बुलंद है तो बुलंदी पर, जिन पहाड़ों पर खुदा रहता है, इसलिए मदद जो है वो मेरी कहां से आएगी? पहाड़ से आएगी, क्योंकि पहाड़ पर खुदा रहता है। पहाड़ पर मसीह खुदा दुआ करने के लिए गए और लिखा है कि ऐसी पुरजोर दुआ की कि दुआ करते उसके चेहरे की सूरत बदल गई। असा शायद कभी अंज दी दुआ की हुई, कभी पुरजोर दुआ इंज दी रूहानियत दे नाल दुआ कि सानू फील होए कि वाकई साडे लूह करने खड़े हो गए ने, होए ने कभी हुंदे ने। और मुझे पता है तुहाडा तजर्बा है, तुसीं करदे हो, हुंदे ने। कई बार से चेहरे किंज बदल जाते हैं, चेहरे नहीं बदल सकते, बाकी नहीं बदल सकते, लेकिन चेहरे जो है वो बदलते हैं एक्सप्रेशन के साथ, हालात वाकयात के साथ। कई बार असीं कहने की गल भाजी अज बड़े कुछ नजर आउंदे, शुक्र है खुदा दा बहू जी, पारी साहब शुक्र है वो बच्चे ने नौकरी लग गई है जी, वो फलाने फलाने रैंक से जी वो बड़ा अफसर बन गया। ये गल भाजी अज बड़े चेहरा उतरिया है, बस पारी साहब बाबू जी वो फलानी फलानी जगह एक डेथ हो गई। तो ये वो हालात वाकयात हैं जो चेहरे
के एक्सप्रेशन जो हैं वो बदलते हैं। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ऐसी पुरजोर ऐसी रूहानियत में दुआ करते हैं, बेशक वो पहले ही रूहानी है, वो रूह से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी दुआ करते हैं कि लिखा है कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई, चेहरे की सूरत बदल गई और दो अशखास दिखाई दिए, मूसा और इलियास। मूसा और इलियास क्यों दिखाई दिए? मूसा जो है ये नुमाइंदगी करता है तौरात की, पहली 5 किताबें तौरा यानी तौरात कहलाती हैं जो मूसा से मंसूब हैं, और उसके बाद इलियास जो है ये नुमाइंदगी करता है साहब अंबिया और खुद खुदावंद यीशु मसीह। यानी यहाँ पर सारा कलाम मुकम्मल होता है, सारा कलाम पूरा होता है जो मसीह खुदावंद कहते हैं कि मैं तौरात मूसा और साहब अंबिया को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। यहाँ पर सारा कलाम मुकम्मल होता है और साथ ही साथ इसे तकवीत देते हैं। मूसा और इलियास इसकी मौत की पेशेंगोई करते हैं, इसे तकवीत देते हैं और इनमें मुताबिकत पाई जाती है। एक जैसी बातें 40 दिन रात का रोजा रियाजत मूसा, 40 दिन रात का रोजा रियाजत इलियास करता है। पहाड़ पर दुआ करने के लिए ये दोनों जाते हैं और पहाड़ पर दुआ करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जाते हैं। इस तरह इन दोनों में मुताबिकत है और पतरस फिर तमाम शागिर्दों की नुमाइंदगी करते हुए कहता है हमारा यहाँ होना अच्छा है, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, यकीनन इस मुक़द्दस महफिल में हमारा यहाँ होना अच्छा है, हमारा यहाँ भाई जॉर्ज के साथ होना अच्छा है, जो खुदा में है, जो खुदा के साथ है, जिन्होंने खुदा के साथ वक्त गुजारा है, रोजे और रियाजत के जरिए खुदा से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं, तो हमारा यहाँ होना, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हम यीशु के साथ हैं, हम यीशु में हैं, हम कलाम में हैं, हम कलाम के साथ हैं, कलाम हमारे साथ है, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हम यहाँ 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा और एक इलियास के लिए। और फिर आगे जो दूसरी बात बड़ी खूबसूरत है कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। यहाँ होना भी अच्छा है और उसकी सुनना भी अच्छा है। होना ही नहीं, कई बार सुनने पर सुनते नहीं। जमायत बड़ी बड़ी जमायत बड़े बड़े गिरजा च बैठी हुई है, बड़ी बड़ी जमात है ने प्रेजेंस से है ने मौजूद ने पर किथे ने पता नहीं, किथे ने पता नहीं, सुनते नहीं। हमारे यहाँ होना भी अच्छा है और उस आल महबूब की सुनना उससे भी अच्छा है। यानी कलाम को ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बने। आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं सारे वक्त के लिए, सारे खूबसूरत माहौल के लिए और बिलखसूस खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं अपने बुजुर्ग खुदा के बेटे भाई जॉर्ज की आज की इस सारी मुक़द्दस महफिल के लिए जो उन्होंने खुदा के खादमों के लिए आज मुनक्किद की कि प्यारा खुदा इन्हें और ज़्यादा अपनी बरकत और फज़ाइल से मालामाल करे, मसीह खुदा के वसीला से आमीन। 1992 में मैं लाहौर में था, 91 में मैं चला गया और यहाँ पर इलेक्शन की मुहिम का जो था वो बड़ा जोर था। और चांदनी चौक में जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर 3 कैंडिडेट थे जिन्हों को सिलेक्ट करना था। 3 कैंडिडेटों को सिलेक्ट करना था। वहाँ पर ये फैसला हुआ कि भाई हम पर्चियां डाल लेते हैं। कभी बड़े गौर से सुने, मैं अपने बदलने का आपको बता रहा हूँ कि कैसा खुदा ने मुझे बदला। तो जब हम वहां पर गए, मुझे भी इन्होंने पैगाम भेजा, लाहौर से मैं आया तो चांदनी चौक में गए, वहां पर उन्होंने पर्चियां डाली और वो जब पर्ची निकली तो जारिस गुलशन के नाम की पर्ची निकली। जब वहां पर ये पर्ची निकली और वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते कि इसकी पर्ची निकली है, दोबारा पर्ची डलेगी। तो वहां पर चाचा जी ने कहा, मुझे बात याद है जिस लफ्ज ने मुझे बदला है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसने कहा अगर आप 100 दफा भी पर्ची डालेंगे तो पर्ची मेरी निकलेगी। इन्होंने
कहा अगर 100 दफा भी आप पर्ची डालेंगे तो पर्ची मेरी निकलेगी, लेकिन मैं तो वहां इलेक्शन के, यहाँ पर इलेक्शन के जोश में आया हुआ था। आप जानते हैं कैसे इलेक्शन का जोश होता है? अपने बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ कैसा जोश होता है। और किस जोर से हम आए थे, पता नहीं क्या क्या अपना इंतजाम करके आए थे कि वहां पर हम इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो क्या हुआ, जब दूसरी दफा पर्ची निकाली गई तो फिर इनकी पर्ची निकली। जब इनकी पर्ची निकली तो वहां से क्या हुआ, हम सब चौधरी वकील खां की कोठी में गए। वहां पर इनको कांधे पर बिठाया, सबने हाथ डाले और ढोल बजते हुए हम अपने घर में आ गए। इनको कैंडिडेट क्या हुआ भाई, इनको काउंसलर जो था वो मुकर्रर कर दिया गया। जब ये वहां पर बिला मुकाबला काउंसलर बने तो जब घर में आए तो मैंने पूछा, मैंने कहा चाचा यार मुझे एक बात बता कि ये कैसे हुआ है। इसने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं रोजे रखता हूँ, दुआ करता हूँ और मैं अपनी मां की इज्जत करता हूँ। और अगर तू भी दुआ करेगा, क्योंकि हम तो इज्जत नहीं करते, आपको पता है कैसे उनके साथ बोलते थे। चाचा ने मुझे कहा कि अगर अपनी माँ बाप की इज्जत करोगे तो दुआ रोजे में ठहरोगे तो जो आपको हम वैसे ही होएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने इस बात को ना अपने अंदर ठान लिया। इलेक्शन में जब ये जीत गए तो उस वक्त क्या था कि मेरा वालिद, मेरे भाई, मेरी माँ जो थी वो बापू जारज के साथ थे और मैं अकेला अपने चाचे के साथ था। मैं अकेला अपने चाचे के साथ था और बाकी पूरी फैमिली उनके साथ थी। लेकिन पता क्या है, हमारी जो अकेले की पावर है ये बहुत ज्यादा है। इनका बहुत ज़्यादा हमारे साथ तल्लक है, घरेलू तल्लक भी है। तकरीबन मैं जब से वो संभाली है इन्हें जानता हूँ। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा आना जाना है। जिस तरह के भाई नसीर ने बताया है पर्ची के बारे में, मैं थोड़ा वक्त लूँगा। उन्होंने पहले बता दिया जब इनका पहला इलेक्शन था, जब ये काउंसलर हुए थे, उस वक्त इनके साथ कोई भी नहीं था। इनके जो बड़े करीबी साथी थे वो भी कहते यार तू क्या करता है, क्या इलेक्शन लड़ता है। इन्होंने कहना ओ भाई मैं तो मैंबर हो ही जाना जे। वो बाबे ने भी साढ़े घर जाना। मेरे दादा जी ने बड़े तलक सन, नाना जी ने घरेलू तलक सी बहुत ज़्यादा ही, रिश्तेदारी सी। उन्होंने भी कहना भाई मैंबर हो ही जाना। वो यार किवें हो जाना, बस मैंबर हो जाना। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इन्हों जिहड़े साडे बजुर्ग ने, मामा जी अनवर साहब जानते हैं या और भी ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਚੀ ਚਾਨਣੀ ਚੌਂਕ ਪਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰਚੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿ ਹੋਰੇ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਂ ਤੇ ਚੌਥੇ ਇਹ ਹਨ ਤੇ ਬਈ 2 ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, 6 ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਰਚੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਪਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਜਾਂ ਇਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ।